Today we are going to start fifth chapter, factor endowments and the HO theorem, या Heckscher-Ohlm theorem of international trade. In this chapter, we will explain that how comparative advantage is based on the differences in factor endowment across the nation, and it also explains the how trade affects relative factor prices within and across the nation after trade. Explain why trade is likely to be only a small reason for higher skilled unskilled wage inequalities. So first, we explain the basis of trade. What will determine the comparative advantage. We have seen in previous chapters that differences in relative commodity prices between two nations is evidence of their comparative advantage, and it is also the basis for the trade. के relative prices अगर दो nations में different हैं, तो ये उनके comparative advantage की indication है और यही basis for trade है. But we now go one step further. Reason, what is the reason behind the difference in the relative commodity prices, and what जो relative differences हैं prices में, जो reason उसकी है वही comparative advantage की reason है. And second, we will study in this chapter कि what will be the effect of international trade on earning of the factors of the production in the two nations. So ये इस तरह से हम इस चैप्टर को एक्सटेंड करेंगे कि जो थ्योरीज हमने पहले पढ़ी हैं उनकी एक्सटेंशन है कि एक तो ये कि उनके व्हाट इज रीजन बिहाइंड द कंपैरेटिव एडवांटेज एंड after the trade what will be effect on the earning of the factors of the production. First of all, we will start with the assumptions of the theory. There are some simplifying assumptions, and we will study the reason behind this assumption of this theory of HO theorem. In this chapter, fifth chapter, factor endowment and the HO theorem, we will study the introduction, assumption of theory. Then there are the some terminologies which we will use to understand our theory. And these terminologies are factor intensity, factor abundance, and the shape of production possibility frontier is determined by the factor intensity and factor abundance. आगे factor endowment and the HO theorem, and then factor price equalization and income distribution and empirical evidence of HO theorem or HO model. In this chapter, we will extend our trade model in order to identify one of the most important determinants of differences in pre-trade relative pricing. हमारा question क्या है कि what is the reason behind the pre-trade relative commodity prices? कि trade से पहले जो commodity की prices भी different है, जो कि comparative advantage की reason है, उसके पीछे क्या वजह है? This also allows us to examine the effect that international trade has on the relative price and income of the various factor of production. Second part जो है वो ये है कि आफ्टर ट्रेड देयर विल बी अ डिफरेंस इन द फैक्टर अर्निंग, तो वो क्या होगा. लेकिन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द assumptions ऑफ द theory. पहला assumption हमारा क्या है कि देर आर ओनली टू नेशंस, टू कम्युनिटीज एंड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नेशन क्या है? नेशन वन एंड नेशन टू. सेकंड, कम्युनिटीज हम एक्स एंड वाई लेंगे और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली टू लेबर एंड कैपिटल. और हमारा ये इसका पर्पस इस assumption का क्या है कि हम जो भी अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसे हम टू डायमेंशनल डायग्राम पे एक्सप्लेन कर सकें. अगर थ्री फैक्टर प्रोडक्शन या थ्री नेशन लेते हैं तो आप उसे टू डायमेंशनल डायग्राम पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सेकेंड assumption है कि both nation use the same technology in production. It means कि both nation have access to and use the same general production method. So टेक्नोलॉजी को फिलहाल ओमिट कर देंगे एज ए रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन रिलेटिव फैक्टर डिफरेंट रिलेटिव कम्युनिटी प्राइसेस. थर्ड इज कम्युनिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव एंड वाई इज कैपिटल इंटेंसिव इन बोथ नेशन. लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है कि लेबर टू कैपिटल रेशियो एल डिवाइडेड बाई के, टोटल एल जितना यूज हो रहा है एक्स की प्रोडक्शन में डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल विच इज वी आर यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स. तो ये जो रेशियो है इट इज हायर फॉर द एक्स देन इट इज फॉर द वाई. सो
Community X is labor intensive and community Y is capital intensive. Fourth assumption है कि both commodities are produced under constant economies of scale. It means that increasing the amount of labor and capital will increase the output in the same proportion. कि अगर आप जो इनपुट्स हैं कैपिटल एंड लेबर अगर इसे आप डबल करें तो आपकी कम्युनिटी एक्स या कम्युनिटी वाई जो भी आप प्रोड्यूस करें उसकी प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी. अगर आप ट्रिपल करें तो इनकी प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाएगी. And there is incomplete specialization in production in both nations. It means that even with the free trade, both nations continue to produce both commodities. Complete specialization ये होती है कि अगर नेशन वन एक्स की प्रोडक्शन स्पेशलाइज करती है तो वो इस हद तक स्पेशलाइज करें या अपने रिसोर्सेज एक्स की प्रोडक्शन में लगा दें कि वाई की प्रोडक्शन जीरो हो जाए. लेकिन हेयर वी अज्यूम कि इट इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन आफ्टर ट्रेड या आफ्टर फ्री ट्रेड भी नेशन वन एक्स के साथ साथ वाई भी प्रोड्यूस करती रहेगी. 6 means कि डिमांड प्रेफरेंसेस आर द टेस्ट आर द सेम इन बोथ नेशन. पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि फ्री ट्रेड रिलेटिव प्राइसेस टेस्ट या डिमांड डिफरेंट होने की वजह से भी डिफरेंट हो सकती हैं. तो इस पॉसिबिलिटी को ओमिट करने के लिए हम जो रीज़न जानना चाहते हैं रीज़न बिहाइंड द डिफरेंस इन फ्री ट्रेड रिलेटिव प्राइसेस तो हम ये चीज़ अंदर से निकाल रहे हैं. सो वी assume कि टेस्ट आर इक्वल इन बोथ नेशन. इट मीन्स कि डिमांड प्रेफरेंसेस आर same in both nations. When relative prices are equal in two nations, both consume X and Y in the same proportion. Seventh assumption is there is perfect competition in both commodities and factor markets in both nations. Perfect competition का concept आपने पीछे माइक्रो में पढ़ा होगा. So it means that producers, consumer are the traders, all participating in the production and the trade of commodity X and Y are each too small to affect the prices of the commodities. के उनमें से किसी की भी मोनोपोली या मार्केट पे इतना पावर नहीं है कि प्राइसेस को चेंज कर सके. प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस फ्रीली. इसके अलावा लेबर टू कैपिटल मार्केट और ओवरऑल सारी मार्केट्स में परफेक्ट कम्पिटिशन है. There is perfect factor mobility within each nation but no international factor mobility. Mean within the nation, different cities may factors can move freely from one area to another area, but at international level factors of production cannot move from one country to another country. There are no transportation costs, there are no tariff or other obstacles to the free flow of international trade. It means that specialization in production proceeds until relative and absolute commodity prices are the same in both nations with trade. If transportation costs and tariffs were allowed, specialization would proceed only until prices differed by no more than cost and the tariff on each until of the commodity traded. मीन के दो कंट्रीज के दरमियान जो प्राइसेस हैं उनके इक्वल हमने कहा था कि जब तक हो नहीं जाती तब तक इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस नहीं होती. उसमें अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को और टैरिफ को हमने ओमिट किया, हमने अज्यूम किया कि देयर इज नो टैरिफ एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट. अगर आप उसे ऐड करते हैं तो आपकी कास्ट दूसरे कंट्री में जब आपकी गुड की एक्सपोर्ट जाके सेल होगी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी ऐड हो जाएगी तो उसमें टैरिफ या टैक्स भी ऐड हो जाएगा. तो हम उनके इफेक्ट को नहीं देखना चाहते, हम उनके इफेक्ट को निकाल के अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई वी अज्यूम कि दैट देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट एंड नो टैरिफ. और सिर्फ ये कि प्रोडक्शन में जब तक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और देन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इक्वल नहीं होती तब तक स्पेशलाइजेशन होती रहेगी. Our resources are fully employed in both nations, mean there are no unemployed resources in each nation. International trade between the two nations is balanced, means the total value of each nation exports is equal to the total value of each nation imports. On the basis of these assumptions, the HO theorem predicted that the capital surplus country specializes in the production and exports of capital-intensive goods, and labor surplus countries specialize in the production and the exports of labor-intensive goods. HO theorem के पीछे थीम क्या है कि हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि जिस कंट्री में रिलेटिवली जो कम्युनिटी चीपर होगी वो उससे स्पेशलाइज करेगा, उसको एक्सपोर्ट करेगा. तो अकॉर्डिंग टू HO थ्योरम चीपर कौन सी कम्युनिटी होगी किसी नेशन के पास, वो कम्युनिटी वो गुड जो उसका वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज ज़्यादा करती हो, इंटेंसिवली यूज करती हो, जो कि उस नेशन के पास सरप्लस नहीं है. बस जिन कंट्रीज में लेबर ज़्यादा होती है उनमें लेबर इंटेंसिव गुड्स चीपर होती हैं.
जिन कंट्रीज में कैपिटल मौजूद है ज़्यादा, उनमें कैपिटल इंटेंसिव गुड्स चीपर होती हैं। लेबर इंटेंसिव गुड्स में फॉर एग्जांपल अगर हैंडमेड कारपेट्स हो या हैंडमेड फुटबॉल है तो पाकिस्तान इनकी एक्सपोर्ट्स में अच्छा है, पाकिस्तान में लेबर जो उनकी है वो चीपर है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ये जापान या अमेरिका की एक्सपोर्ट्स इन कंट्री में ज़्यादा है क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव कम्युनिटीज हैं। तो एचओ थ्योरम क्या है कि लेबर सरप्लस कंट्री या वो कंट्री जिसमें लेबर अबंडेंस में होगा वो लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स हो गई। और वो ये जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा है, ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और जिन कंट्रीज के पास कैपिटल अबंडेंस में है, सरप्लस में है, वो कंट्री वो गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा जो कैपिटल इंटेंसिव है। खैर ऑन योर बुक ये अजम्पशंस आपकी यहाँ पे भी गिवन है, 11 अजम्पशंस हैं। और हर अजम्पशन का जब भी हम किसी भी थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए कुछ अज्यूम करते हैं तो उसका कोई पर्पज होता है। चाहे इसके लिए ये कि हम अपनी थ्योरी को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करना चाहते हैं, या हम टू डायमेंशनल डायग्राम को प्रेजेंट करना चाहते हैं, या हम कुछ और फैक्टर्स का इफेक्ट, जैसे हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, तो इस दौरान हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पॉपुलेशन कांस्टेंट थी, क्योंकि उधर से प्राइस बढ़े और साथ ही पॉपुलेशन बढ़े तो डिमांड कम नहीं होगी, मे बी डिमांड इंक्रीज हो जाए। तो सिर्फ प्राइस के इफेक्ट देखने के लिए हमने पॉपुलेशन को कांस्टेंट ले लिया। तो इसी तरह इन सब अजम्पशंस का कोई मीनिंग है, कोई पर्पज है। 5.2 बी में यहाँ डिटेल से गिवन है, ये सब आप देखिए और इसमें अभी भी यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछ लें।